معیاری خوراک عوام کا آئینی حق ہے اور اس کی فراہمی ریاست کا بنیادی فریضہ ہے۔ بدقسمتی سے مملکت خداداد میں صورتحال اس کے برعکس ہے، جہاں کھانے پینے کی اشیاء بھی محفوظ نہیں۔ عوام لا علمی میں نہ صرف اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں بلکہ مہلک امراض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں متعدد فیکٹریاں حیوانی آلائشوں سے تیل کشید کر صابن سازی کے لیے تیل سپلائی کرتی ہیں، لیکن اطلاعات کے مطابق یہی آلائشی تیل کھلے پکوان تیل اور برانڈڈ تیل میں ملاوٹ کے لیے بھی فروخت کیا جا رہا ہے۔ نت نئے ناموں اور دل فریب پیکنگز میں مارکیٹ میں دستیاب تیل عوام کو سلو پوائزن کی صورت میں کھوکھلا کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی غفلت اور عوام کی لا علمی کے نتیجے میں موذی امراض سامنے آ رہے ہیں۔ دوسری جانب مارکیٹ میں موجود خوشنما اور دل فریب پیکنگ میں موجود بیکری اور سویٹس آئٹم کی اکثریت بھی مضر صحت اجزاء سے تیار کی جا رہی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہیں تو درست ہوگا۔ سویٹس اینڈ بیکرز شاپس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک بیکرز کا کارخانہ اور دوسرا حصہ فروخت کرنے والا، جبکہ مال تیار کرنے والا پورشن صارفین کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ مٹھائی کارخانے کے چولہے، کڑھاؤ، سانچوں، برتنوں اور مٹیریل وغیرہ کی حالت کیسی ہے اور کارخانے میں کام کرنے والے بیکری ورکرز کی کیا حالت ہے، یہ تو وہی جانے جس کا واسطہ پڑ جائے۔ لیکن سویٹ شاپس کا سیلز پوائنٹ پوری آب و تاب سے چمکایا جاتا ہے، کیونکہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے۔ آج کی گرفت ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں حیوانی آلائشوں سے تیل کشیدنے والی ایک ایسی فیکٹری جو بظاہر تو صابن ساز فیکٹریوں کو تیل فراہم کرنے کی دعوے دار تھی، لیکن اس کے حوالے سے یہ شکایات موصول ہوئیں کہ یہ پکوان تیل میں ملاوٹ کے لیے بھی مضر صحت تیل سپلائی کر رہی تھی، جبکہ دوسری جانب مضر صحت اشیاء بنانے والی سویٹس اینڈ بیکرز شاپس کو بھی گرفت میں لیا گیا۔ سندھ فوڈ اتھارٹی کے ہمراہ ٹیم گرفت پہنچی حیدرآباد سٹی۔ کارروائی کے لیے ٹیم انچارج ڈیپٹی ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی مہدی شاہ اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر سندھ فوڈ اتھارٹی جہاں زیب موجود تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں حیدرآباد کے ایک مضافاتی علاقے میں۔ سر یہ ہم کہاں پہ آئے ہیں اور کس چیز کے اوپر ہم کارروائی کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں اپنی ٹیم ممبرس کو سیلیوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا دور، دیکھیں کتنا یہ ہم ٹریول کر کے آئے، کتنا مطلب ٹریز تھے، کتنے آگے اندرون سندھ میں آ کے انہوں نے شہر سے یہ ریسرچ کیا۔ سیکنڈلی یہ پہلے دن کو کام کر رہا تھا، تو پھر ہمارے ایکشن کے بعد اس نے دن کو کام کرنا بند شروع کیا۔ ہماری جیسے اطلاع ملا کہ ابھی اس نے رات کو کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو ریکی کر کے اس کو پھر ہم نے پکڑ لیا کہ ابھی اس نے رات کو، اب یہاں پہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اتنی سمیل ہے کہ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ حیدرآباد سٹی کے مضافات میں تقریباً 45 منٹ کی مسافت پر ٹیم گرفت پہنچی اس مضر صحت تیل بنانے والی فیکٹری میں، جس کے بارے میں سندھ فوڈ اتھارٹی کے عملے نے بڑی جاں فشانی سے پتہ لگایا تھا، جبکہ اس مضر صحت تیل بنانے والی فیکٹری کو انتظامیہ کی جانب سے پہلے بھی ایک مرتبہ سیل کیا جا چکا تھا۔ گاڑیوں سے اترتے ہی شدید بدبو اور تعفن نے ٹیم گرفت اور فوڈ اتھارٹی کا استقبال کیا۔ واقعی میں شہر سے کافی دور، حیدرآباد سے تقریباً ہم پونے گھنٹے کی مسافت طے کر کے اس جگہ پہ پہنچے ہیں، اور یہاں پہ کنڈیشن ایسی ہے کہ بالکل جو میری صاحب نے بتائی تھی باتیں، وہ بالکل اسی طریقے سے کام چل رہا ہے۔ یہاں پہ بھٹیاں ان کی آن ہیں، اور اس میں یہ مختلف جانوروں کی جو آلائشیں ہیں ان کو ڈال کے ان کو کرش کیا جاتا ہے، اور کرش کرنے کے بعد یہاں سے ان سے تیل جو ہے وہ کشید کیا جاتا ہے۔ یہ تمام بھٹیاں اس وقت چل رہی ہیں۔ ایک دفعہ پہلے بھی اس کے اوپر کارروائی کی جا چکی ہے، لیکن اس کو سیل کرنے کے باوجود انہوں نے رات میں یہ کارروائی دوبارہ سے شروع کر دی تھی۔ سر یہاں کی اطلاعات، آپ پہلے تو زبردست آپ لوگوں کی ٹیم کا کام ہے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے خود دیکھا کہ ہم کہاں سے اور کس راستے سے آئے اور کہاں ہمیں اندر آنا پڑا ہے۔ میں اپنی ٹیم کو شاباشی دیتا ہوں اس بات پر، اور دوسرا یہ کہ ہم جیسے آئیں تو کچھ ان کے جو مزدور لیبر ہے یہاں سے دیوار کود کے بھاگ گئے ہیں کافی۔ اندرونی ماحول کوڑا کرکٹ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زنگ آلود مشینوں پر جمی گندگی، زیر استعمال برتن اور ڈرمز اور ان میں بھرا ہوا تیل غلاظت اور گندگی سے بھرپور تھا۔ فیکٹری کا بیشتر عملہ دیوار پھلانگ کر بھاگ نکلا تھا۔ ان کی یہ مفروری، ان کی جعلسازی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ فیکٹری کے کچھ کارندے اور ایک منشی ابھی فیکٹری میں موجود تھے۔ ایسی اسمیل ہے کہ یہاں پہ کھڑا ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس پورشن میں ان کا یہ ہے
यहाँ से ये रॉ मटेरियल शिफ्ट करके ये फिर आगे अब देखते हैं कि किस तरह मुर्गियों की वेस्ट का ये रॉ मटेरियल निकालते हैं ऑयल। सर ये जो प्रोसेस आपने देखा है, बाहर बॉयलर लगा हुआ है, उसके बाद ये इसकी जो मशीन्स हैं इससे जो है वो उसको कंप्रेस करके यहाँ पे सारा एक्सट्रैक्ट जो है यहाँ पे जमा होता है। उसके बाद ये सीव्स लगी हुई हैं यहाँ पे, छान के जो है ये टैंक्स वगैरह फिल करके सप्लाई देते हैं। अब बकौल इनके कि ये जो है हम सोप बना रहे हैं, लेकिन हमें जो कुछ शिकायतें आई हैं कि ये जो है कोई एडिबल ऑयल के पर्पस के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से जो है ना इसको जो है हमने पहले ही बंद किया हुआ था, लेकिन ये फिर इलीगल ये इन्होंने खोल के जो है दोबारा काम शुरू कर दिया। सिंध पोल्ट्री फीड प्रोटीन फैक्ट्री के उन्वान से कायम ये फैक्ट्री बज़ाहिर तो साबुन साजी के लिए तेल साजी की दावेदार थी, लेकिन इत्तलात के मुताबिक इस फैक्ट्री में दो किस्म के शकूक पाए जा रहे थे। एक ये कि फैक्ट्री में तैयार किया जाने वाला तेल खाने पीने के लिए इस्तेमाल होने वाले पकवान तेलों में मिलावट के लिए भी सप्लाई किया जाता था। दूसरा एहतमाल ये था कि तेल कशीदने के लिए जिन जानवरों की आलाइशें इस्तेमाल की जा रही थीं, उन जानवरों में शायद हलाल और हराम की तमीज भी मलहूज नहीं रखी जा रही थी। इनकी प्रेसिंग, इन पार्ट्स की प्रेसिंग करके फिर जो साइड से ऑयल निकलता है वो ऑयल जो है ये मार्केट में सेल करते हैं और फूड कंजम्पशन के हिसाब से इस्तेमाल होता है। अब इस चीज़ का ऑयल अगर इस्तेमाल हो तो इंसान को क्यों नहीं असर होगा इंसान को। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें, हड्डियाँ और देखने में ये आया है आमतौर पे कि हराम जानवरों की भी हड्डियाँ जो हैं, कुत्ते बिल्ली की भी हड्डियाँ हैं इसके अंदर। इवन ये भी देखने में आया कि गधों की भी हड्डियाँ और तमाम अलाइशें वगैरह, उनकी चर्बी, ये इन सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल की जाती है और एडिबल ऑयल बना के इसको खुले ऑयल के तौर पे मार्केट में बेचा जाता है लोगों के इस्तेमाल करने के लिए। लास्ट टाइम आए थे, इनको नोटिस भी देके गए हैं और ये सील करके गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इन्होंने कटर से लाके इन्होंने ये कटिंग करके अपनी दोबारा इन डीसील खुद की है। ये देखिए पूरा गेट पर काट के इन्होंने जो है ना, पूरा गेट काट के इन्होंने, ये देखिएगा गेट में नई वेल्डिंग शेल्डिंग इन्होंने की, पूरा गेट काट के दूसरा इन्होंने पीस से लगा के इन्होंने ये डीसील किया। सर इन्होंने जैसे डीसील किया है तो ये डीसील करने के ऊपर तो फिर कॉग्नाइजेबल ऑफेंस बन जाता है, इनके तो गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। बिल्कुल, प्रोसीडिंग्स अब इनके खिलाफ जारी हैं। ये हमारे आज विजिट किया है और विजिबली इनको हमने चेक भी किया कि अंदर काम भी स्टार्ट कर दिया है और इन्होंने सील भी तोड़ दी। लाजमी फर्दर प्रोसीडिंग्स इनके खिलाफ जारी करेंगे। इसके अंदर मुर्गी के अलावा और कौन कौन से जानवर की तलाश की जाती है? हम इस चीज़ की सबूत देंगे। कुछ अगर हो जाए तो क्या मसला है जब साबुन ही बना रहे? अगर हो जाए कोई और जानवर तो तुम्हारा जूता हमारा साथ। ये मुर्गी की हड्डी है भाई, इधर आइए, ये दिखाएं। उनको नहीं नजर आई होगी, नहीं निकाली होगी। ये यहाँ तक तो आ गई है ना, फिर क्रशिंग भी हो गई है। इसके हम माजरत कर लें। देखो, हम हैं मुल्तान के रहने वाले, हमें मुंशी, जो हम मालिक तनख्वाह देता है, जो हमें आर्डर होगा हम तो उसके तहत ही चलेंगे ना। फिर आपका मालिक कहाँ पर और किधर रहता है? आपके मालिक अपना ये गद्दी है, गद्दी चौक से आगे इनका घर है। आपके मालिक का नाम क्या है? रफीक कहाँ के रहायश के हैं? ये जो कॉलोनी का नाम नहीं आता है, शहर के हैदराबाद के। कब से ये कारोबार कर रहे हैं यहाँ पर? कर रहे हैं 15 साल से कोई भी नहीं आपके पास आया, ना किसी ने कुछ बोला है? मुझे तो हो रहा है 4 साल आए हुए। मेरी मौजूदगी में तो यही भाई है, वो डॉक्टर आए, क्या इसका नाम यही है। पहले कोई भी नहीं आया था 3 सालों में। ये इस साल चौथे साल में यही है, इन्होंने सील किया। पहले तो कोई आज तक कोई बंदा ना कोई आदमी आया ही नहीं, ना किसी ने सील की है। अब तक किया, मालिक को बताया कि हमारा मालिक को बताया गया है, कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं, थोड़ी यहाँ से फासले पे रहते हैं, हैदराबाद में ही उनकी रिहाइश है। बहरहाल ये सारी लेबर जो इनके तहत काम कर रही है, ये खुद एक हैजर्डियस कंडीशन के अंदर काम कर रही है। आपको बदबू महसूस नहीं होती है इसकी? बाबा पहले भी 13 साल पीछे मुल्तान में करके आया हूँ, इसी फैक्ट्री में। बदबू में हमारे दिमागों में रची हमें के 13 साल पहले मैं चला के आया हूँ, 13.5 साल, ये शुजाबाद रोड पे। किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है? तभी हैं ये किस चीज़? जो APC है, मुर्गी खुराक में इस्तेमाल होती है, ठीक है। जो ऑयल है वे साबुन के लिए अपनी इनकी फैक्ट्री है, बिहारी पंप से आगे ये ऑयल उधर ले जाती है। कौन से, नाम क्या है? रफीक गद्दी साहब। साबुन की फैक्ट्री? साबुन की फैक्ट्री वो दूध की डेयरी से मशहूर है। क्या नाम है? यार ये बिहारी पंप जाओगे ना, बिहारी पंप के आगे गली निकल रही है,
ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ, ऐसे मैं बोलूँगा नाम नहीं लिखा हुआ, उधर ही वो साबुन बनाते हैं। डेयरी के नाम के साथ मशहूर है और बनाते हैं वहाँ पे साबुन है। डेयरी भी है, साइड पे डेयरी भी है, उनका दूध का भी कारोबार है, साबुन का भी कारोबार है, काफ़ी बहुत। ये तो मुर्गी की फीड बना रहे, वो डेयरी का काम डेयरी का कर। हाँ, वो उनका दूसरे भाई करते हैं। अच्छा, सारे भाई मिलके ये काम कर। ये नहीं सारे नहीं, वो उनका अलग काम है, वो इससे खरीदते हैं तेल, इस सेट से। उनका साबुन का अलग काम है, इसका अलग काम है। ये प्रोटीन जो है एपीसी में मिक्स होती है। ये अगर मुर्गियों में फीड में A1 फीड होगी, HS फीड होगी, सोना फीड होगी, कोटरिया नूरीबाद होगी, ये सारी फीडें ले रही है एबीसी। इसके अंदर मुर्गी के अलावा और कौन कौन से जानवर की तलाश की जाती है? हम इस चीज़ की सबूत देंगे। कुछ तो अगर हो जाए तो क्या मसला है जब साबुन ही बना रहे जो अगर हो जाए कोई और जानवर तो तुम्हारा जूता हमारा साथ। हैं? तो अगर हो जाए तो अगर साबुन ही बना रहे हैं हमने लेबर को बोला है, रात वाली लेबर को, कि एक मुर्गी भी मुर्दा आ जाए तो आपने उसको निकाल देना है। मुर्दा मुर्गी नहीं, जिंदा मुर्गी से बनाते हैं। मुर्दा नहीं, ये तो ज़िबा होता है ना, मुर्गी कचरा होता है जो आंद्रे पर खम्ब जो खुड्डे वाले दुकानों वाले हैं वो लेके उधर से लेके आते हैं। कुछ हड्डियां मुझे नजर आई थी जो मुर्गी की तो नहीं हो सकती, अब नजर आई। काम दिखाओ, दिखा देते हैं आपको, आइए जरा। ये मुर्गी की हड्डी है भाई, इधर आइए। ये मुर्गी की हड्डी है, ये दिखाएं। तुम्हारी बात सही है, मैं मानता हूँ। हाँ। वो कहीं खुड्डे वाला को लेके आ जाता होगा या कोई जानवर की को साथ कोई मुर्गी के हो। आपने तो बताया हुआ है लेबर को कि निकालना जरूरी है। हम इस चीज की गारंटी देंगे। तो लेबर ने निकाली तो नहीं ना? चूंकि ये वो जब एक गाड़ी 50 मन की आती है या 60 में, उसमें वो जैसे पंजी से उतार रहे थे, उनको नहीं नजर आई होगी, नहीं निकाली होगी। अच्छा, ये यहाँ तक तो आ गई है ना फिर, और क्रशिंग भी हो गई है। इसके हम माजरत कर लेते। चलें, बड़े आसानी से आपने माजरत कर ली। उस वक्त तो आप ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। जा बजा चौपायों की हड्डियां और जबड़े बरामद हो चुके थे। मुंशी के फकत मुर्गी की आलाइश के दावे धरे के धरे रह गए, लेकिन मुंशी फिर भी अपनी बात पर डटा हुआ था कि इस फैक्ट्री में सिर्फ मुर्गी की आलाइशों से तेल कशीदा जाता है। ये मुर्गी की नहीं है, ये तो बकरे की है। बकरे की है। अच्छा, मुझे तो लग रहा था मुर्गे की होगी। नहीं, मुर्गी की नहीं होगी तो मुर्गी की होगी। नहीं, बकरे की। नहीं, हाँ, सही बताएं। ये मैं कहता हूँ कि बकरे की है, तुम कहते हो नहीं। मैं बोल रहा हूँ मुर्गे की है, ये मुर्गी की नहीं। नहीं, मुर्गे की तो इतनी बड़ी नहीं होती है। चलें ठीक है। और वो किसकी थी फिर ये भी बता दें। किसी जानवर वाली थी। किसी जानवर की हो गया। किसकी थी? गधे की थी। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। बड़े जबड़े के साथ गधे की। मेरे भाई, गधे की ऐसी नहीं होती मेरे भाई। हम इतने अच्छा चलें बताएं। जिंदगी गुजार चुके हैं, 13.5 साल गुजार चुके हैं, बच्चे तो हम भी नहीं। अच्छा चलें। ये क्या है? वो जो होती है खम्भ जो होता है, उसके ऊपर वो उतार के जो तोड़ देते हैं। ये अभी तो आप कह रहे थे अगर मुर्दा मुर्गी भी आ जाती है तो वो निकाल देते हैं। बात ऐसी सी हमने आपके लेबर तो आपकी बात नहीं मानते ना। कि चली जाती होगी। नहीं, आपके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी अगर कोई आपका वर्कर करे तो उसके साथ आप क्या करते हैं? छुट्टी करा लेते। कितनों को छुट्टी कराई अभी आप? मैंने तकरीबन काफियों को छुट्टी करा चुका हूँ इसी मामले में। और अगर आपके मालिक जो है ना वो ये देखें, सारी चीज़ें आपने की हुई हैं, आपके मालिक अगर देखें और वो ये उनको आप बोल रहे हो कि नहीं हम सिर्फ मुर्गी का ही काम करते हैं, तो वो आपकी भी छुट्टी करा सकते हैं। इसका मतलब मेरी बात सुनो। ठीक है, वो मैं मानता हूँ भाईजान, वो मैं मानता हूँ, मैं मान रहा हूँ। ये हलाल चीज़ है, कोई हराम चीज़ तो नहीं है ना। ये भी देखें है सोप फैक्ट्री का। यहाँ पे तो सोप फैक्ट्री नहीं है कोई भी। यहाँ तो सिर्फ आप ऑयल निकाल रहे हैं। ये FBR का आपने डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है कि इस यूनिट पर, ये इस यूनिट के कागज़ है ना, तो ये दिखा है कि सोप फैक्ट्री है। तो यहाँ पे सोप वगैरह तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आपकी ये होगी सील, क्योंकि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिया। वजन इसमें तो काफ़ी कोर्ट्स वगैरह में भी शत पे इनका कोई केस वेस चल रहा है। वो अभी ज़्यादा तो भी इनका भी नहीं रखते, लेकिन ये है कि इन्होंने अपने ऑनरशिप भी ट्रांसफ़र करवाई है, उनके भी डॉक्यूमेंट्स हैं। और जिस सोप फैक्ट्री को शायद बेचते हैं उनका नाम भी है सामने लिखा हुआ आ रहा है।
तो अब ये डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, इनकी वेरिफिकेशन के लिए भी हम लोग फर्दर आगे अदर डिपार्टमेंट्स में भी भेज देंगे। किस तारीख के बने हुए? ये तो 2017 ही दिखा रहे हैं, यही बने हुए, लगता है मेरे ख्याल ये एक्सपायर हो गई, ये लिखा हुआ भी है इन्होंने 22 जुलाई 2017। 2017 का टैक्स इन्होंने जो जमा कराया वो डॉक्यूमेंट है? जी, यही वही डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद और कुछ भी नहीं है। और ये इलेक्ट्रिसिटी के जो बिल हैं ये भी जुलाई 2017 के ही दिखा रहे हैं। 17 के बाद कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई प्रूफ इनके पास नहीं है। कोई नया बिल है आपके पास? नया बिल है। अच्छा, इस प्लाट का नंबर क्या है? आपके पास प्रॉपर्टी हमें डॉक्यूमेंट होगा ना? नहीं, ये भी देखें है सो फैक्ट्री का, यहाँ पे तो सो फैक्ट्री नहीं है कोई भी, यहाँ तो सिर्फ आप ऑयल निकाल रहे हैं। ये FBR का आपने डॉक्यूमेंट है, ये दिखा रहा है कि इस यूनिट पर, ये इस यूनिट के कागज़ है ना, तो ये दिखा है कि सोप फैक्ट्री है, तो यहाँ पे सोप वगैरह तो कुछ भी नहीं है। और सारे सर्टिफिकेट भी आपने, तो वो तो वहाँ पर है ना, उधर होने चाहिए ना भाई। इस जगह के हमें इस जगह की डॉक्यूमेंट नहीं है ये तो सोप फैक्ट्री नहीं है। यहाँ आप दिखाने को ये रख रहे हैं कि ये सोप फैक्ट्री है और ये ऑयल आगे आप यूज़ कर रहे हैं। नहीं, एक आपने ना दो, जी जी, मैं एक मुलाजिम हूँ, आप जो मुझे चीज़ दोगे तो मैं तो वही दिखाऊंगा ना। हम सिर्फ एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि आया ये सो फैक्ट्री है? प्रोटीन की फैक्ट्री है। अच्छा, प्रोटीन का आपका कोई डॉक्यूमेंट तो दिखाएं ना, जिस तरह ये आपने सो फैक्ट्री का दिखाया, दिखाएं। कुछ भी नहीं, मैंने चेक किया, सारा कुछ नहीं है। हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल दिखा रहे हैं 2020 का, ये भी कोई दूसरी इंडस्ट्रीज है, सोप इंडस्ट्रीज, और ये हाली रोड है, और ये जहाँ पर हम लोग खड़े हैं ये हाली रोड नहीं है। तो अभी जो जाहिर हुआ है इनको डॉक्यूमेंट्स को देखकर हमें लगे ऐसे ही रहा है कि ये ज़ाहिरन अपने आप को सो फैक्ट्री कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये जो है ऑयल ही यूज़ कर रहे हैं फॉर ईटेबल कंजम्पशन। फैक्ट्री दस्तावेजात से किसी भी तौर से यह बात साबित नहीं हो रही थी कि इस फैक्ट्री से किसी भी साबुन साज फैक्ट्री को तेल सप्लाई किया जाता था। फैक्ट्री की ज़बूहाली, दावों की हकीकत साबित न होने और कागजी कार्रवाई में खुर्द-बुर्द के बायस सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने फैक्ट्री को सील करने का हुक्म जारी कर दिया। इस वक्त तो इसको हम सील कर रहे हैं, ठीक है। अगर फर्दर डॉक्यूमेंटेशन अगर कि लाते हैं कि ये ऑयल हम फलां सो फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं, तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्या प्रोसीडिंग्स इनके अगेंस्ट करते हैं। इनके खिलाफ क्या चालान किए गए? जी नहीं, अभी तो आपकी ये होगी सील, क्योंकि कोई भी आपने डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिया कि ये आप किसी सो फैक्ट्री को सप्लाई कर रहे हैं। देखें, इस पे क्लियर कट इन्होंने लिखा है कि साबुन बनाने की चर्बी, मतलब वो जो हमने डॉक्यूमेंट्स देखे थे उसमें भी क्लियर कट लिखा हुआ था कि साबुन बनाने का वो था, उसमें FBR का टैक्स का एक डॉक्यूमेंट था, लेकिन यहाँ पे कोई साबुन की मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं। तो अगर ये चर्बी भी साबुन की चर्बी बना रहे हैं तो वो किसको सप्लाई कर रहे हैं, एक भी डॉक्यूमेंट इन्होंने हमें नहीं दिखाया। तो यही है कि इसके सारे वॉल जो है हम सील कर देते हैं, और इसके मेन गेट जो है कंडीशन है तोड़, क्योंकि इन्होंने काफ़ी तोड़ दिए हैं गेट, 2-3 जो मेन गेट है उनको हम सील कर देते हैं, और इनके वॉल जो हैं वो भी सील कर देते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इस फैक्ट्री को जो है सील किया जा रहा है, तमाम लोगों को बाहर निकाल दिया गया है, मैनेजर भी साथ में खड़े हैं, और इस वक्त जो मेन गेट था, बॉयलर्स वगैरह को सील कर दिया गया था पहले, अब इस मेन गेट को भी सील किया है। सर, आगे क्या फर्दर प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि पहले भी आपने इसको सील किया था फैक्ट्री को, दोबारा से इन्होंने डीसील करके और अपना काम जारी रखा हुआ था, आज हमने एविडेंस भी देख लिया इस चीज़ का। बिल्कुल ये जाहिर हो गया था और कि इन्होंने डीसील भी किया है और अपना फैक्ट्री में जो इनका ऑयल का काम है वो भी इन्होंने शुरू कर दिया था। इनकी अगर पोजीशन ये है कि ये जो ऑयल है हम साबुन के लिए सप्लाई करते हैं किसी भी फैक्ट्री को, तो देखें ये फिर पूरे पाकिस्तान में भी ऐसा होता होगा। लाजमी है इस किस्म की दूसरी फैक्ट्रीज कराची में या पंजाब में कहीं ना कहीं होंगी, वो भी सप्लाई करती होंगी। तो इनको भी चाहिए अगर किसी साबुन फैक्ट्री को ये सप्लाई करते हैं तो प्रॉपर उसकी हमें इनवॉइसेस दें कि हम उनको वहीं से भी इसको वेरीफाई कर लें कि इनकी जो ये ऑयल है वो वहाँ पे जाता है। प्लस में
ان کے یونٹ میں ایک تضاد پایا گیا ہے کہ ان کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ہے صابن فیکٹری. جو APR کا اس میں ڈاکیومنٹ تھا وہ لکھا ہوتا کلیئر کٹ صابن فیکٹری. تو یہاں پر تو کوئی بھی صابن نہیں بن رہا, یہاں پر صرف چربی نکل رہی ہے آئل کے لیے. اگر یہ سپلائی کہیں پہ کر رہے ہیں تو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا, تو فردر پروسیڈنگس اس ویریفیکیشن کے بعد ہی ہو سکیں گے. سندھ فوڈ اتھارٹی کو ایک ایسی بیکرز اینڈ اسٹریٹ شاپ کی اطلاع بھی تھی جہاں بے دریغ حفظان صحت کے ضابطہ اخلاق کی دھجیاں بکھیری جا رہی تھیں. سویٹس اینڈ بیکر شاپ حیدرآباد کے رہائشی علاقے میں موجود تھی. ناظرین, اس وقت ہم ایک کنفیکشنری شاپ پہ آئے ہیں. مختلف بیکری آئٹمز یہاں پہ بن رہے ہیں. ادھر بھی دیکھیں گے جو ان کا باہر آؤٹ لیٹ ہے اس کی آپ کنڈیشن دیکھ لیں, اور اب ہم اندر جائیں گے, دیکھتے ہیں ان کے پاس کس ماحول میں کام ہو رہا ہے. جی, وہی سلسلہ ہے. آپ کے جو فیکٹری کے آؤٹ لیٹس ہوتے ہیں, جو بھی آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اس کے جو باہر ایک شو روم ہوتا ہے وہ بہترین کنڈیشن میں ہوتا ہے, اور پیچھے جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کا ان کا جو پروڈکشن ایریا ہے اس میں آتے ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں آپ کے نظروں سے اوجھل کی جا رہی ہیں, چھپائی جا رہی ہیں, جو کہ نامناسب ہیں. اور یہ نامناسب تمام چیزیں یہاں پہ موجود ہیں. میرے خیال سے ختم ہو چکا ہے سر. تقریباً جو ہے ان کی فرائنگ ریشو جو ہے زیادہ لگ رہی ہے. کلر ہی بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے اب استعمال کرنے کے قابل نہیں رہا, لیکن آپ کے سامنے ہے سر, یہ یوز کر رہے ہیں اور کوئی ایسا کوئی کا میرے خیال میں دھجیاں اڑا رہے ہیں. کوئی فالوئنگ جو ہے نہیں, وہی حالت مطلب شیورٹی کے حساب سے سمجھ سے باہر ہے سر. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کے لیبرز کو دکھایا جاتا ہے تو لیبرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی مزدوروں کو جو ہے وہ ہتھیا لیا جاتا ہے, مزدوروں کے اوپر جو ہے وہ کیا جاتا ہے کام. آنا ادھر ذرا دوست. یہ ہے ان کی کنڈیشن. اب اگر یہ کھانا پکائیں گے, اسی میں چیزیں بنائیں گے, تو ایسی صورت میں کیا ان کو نہیں پکڑا جانا چاہیے, ان کو اس چیز کے لیے نہیں روکا جانا چاہیے؟ اچھا, کراس کنٹامنیشن ہے. آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, یہ ماوا پڑا ہے اور یہ ماوا میں بالکل سمیل آ رہی ہے. تھوڑا سا زنگ آپ چاٹ سکتے ہیں ذرا یہاں؟ نہیں, تھوڑا سا نہیں سر. تو پھر آپ دوسروں کو کیوں دے رہے ہیں ایسا؟ آپ کے گھر میں بھی ایسی ڈیپ فریزر موجود ہے جس میں زنگ لگا؟ دکان میں داخل ہوئے تو شکایتوں کی تصدیق ہونے لگی. بیکری کے باہر گیٹ پر رکھی ہوئی کھانے کی تمام چیزیں کھلی رکھی گئی تھیں. کارخانے کی حالت زار بھی قابل افسوس تھی. گندگی, غلاظت, تعفن اور جلی ہوئی دیواروں نے استقبال کیا. زائد الاستعمال کالے تیل کا کڑھاؤ منہ چڑھا رہا تھا. ممنوع کیمیکل ڈرمز اور گھی کے خالی کنستروں میں مٹھائیاں اسٹور کی گئی تھیں. یقیناً یہ سارا ماحول انسانی صحت کے لیے مضر تھا. میں تھوڑا سا اس کو ٹیشو کروں تو یہ دیکھیے. اچھا, یہ آؤٹر ایریا ہے. تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں کہ انر ایریا جو ہے اس کو بھی ذرا چیک کرتے ہیں. یہاں پہ ایکچولی فوڈ بننا ہے. میں ٹیشو کا دوسری طرف کا ایریا استعمال کرتا ہوں, یہ پورے کے اوپر, اور یہ آپ دیکھ لیجئے. انہی کنڈیشنز میں اگر آپ اپنے گھروں میں کھانا پکاتے ہیں تو ضرور اس بیکری سے کھانے پینے کی اشیاء لینا چاہیے آپ کو. آپ کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. آپ کی اپنی ہیلتھ ہے, ہائیجین ہے, اس کے حوالے سے آپ جو بھی فیصلہ کریں. لیکن اگر آپ گھروں میں اس طریقے کی کوکنگ نہیں کرتے, ہائیجین کا خیال رکھتے ہیں, تو پھر یہ جو بیکری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, یہاں سے کوئی بھی چیز لینا آپ کے اپنے لیے ایسا ہوگا جیسے آپ آنکھوں دیکھی مکھی کھا رہے ہوں. اچھا, کراس کنٹامنیشن ہے. آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں, یہ ماوا پڑا ہے اور یہ ماوا میں بالکل سمیل آ رہی ہے. آپ اب سمیل بھی دیکھیں اور گندگی بھی دیکھیں. یہ دیکھیں, سمیل کے ساتھ ساتھ یہ پوری رسٹنگ ہوئی بھی ہے. دیکھ لیے ہیں اس کے نیچے, یہ دیکھیں نا, اس کے نیچے بھی. بھائی اس کو اٹھائیں, یہ چیز یہ یوز کریں مٹھائیوں میں, اور لوگ جو ہے نا بڑی اچھی پیکنگ میں دے کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی اچھی چیز ہے. جلیبی, ہاں لگ تو ایسے ہی رہا ہے کہ لیکوڈ ہے, لیکن بڑا سا گاڑھا سا لیکوڈ ہے, بالکل ڈینجرس ہیلتھ کے لیے. بھائی آپ اونر ہیں, یہ کنڈیشن دیکھ رہے ہیں آپ, اچھی کنڈیشن ہے نہیں, پھر کیوں کر رہے ہیں؟
कोई तो जवाब दें। बस आगे आएंगे ज़रा, थोड़ा सा जंग आप चाट सकते हैं ज़रा यहाँ से, नहीं थोड़ा सा। नहीं सर। तो फिर आप दूसरों को क्यों दे रहे हैं ऐसा? आपके घर में भी ऐसे ही डीप फ्रीजर मौजूद है जिसमें जंग लगा हो? नहीं, तो फिर ये दूसरों के लिए इस्तेमाल की चीज़ें, ये फिर गलत है? जी बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम नहीं होगी इंशाल्लाह तब। तो ये जंग एक दिन में तो नहीं लगता ना? बस इंशाल्लाह इसको चेंज करेंगे। ये आप देखें जी जी इकट्ठे करके रखी हैं। अगर स्टोरेज करना है तो कम से कम मावा इसमें सड़ के साथ तो रखें ना। ये पूरा फ्रिज की डीप फ्रीजर की आप सत्यानाश और बैक्टीरिया जरासीम सारे खाने की ओपन चीज़ों में बढ़ जाते हैं। लाजमी ये सेहत के आपको मुनाफा तो मिलता है ना, या ऐसे नुकसान है कारोबार में, तो लोगों की जिंदगियों के साथ आप कम से कम इस तरह से नहीं खेलें। बेकरी मालिक ने लाचार हर सवाल के जवाब में निदामत का इजहार किया और आइंदा सब कुछ बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई। सिंध फूड अथॉरिटी के अमले ने बेकरी के मालिक को कुछ अरसे की मोहलत देते हुए जल्द अज जल्द हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों को अपनाने का इंतबाही नोटिस दिया और उसूल व ज़वाबित की आइंदा पाबंदी न करने की सूरत में दोबारा कार्रवाई का इंदिया भी दिया। अब्दुल्ला भाई, ये तमाम चीज़ें आप जो बना रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा कि आप एक अच्छे मॉल में काम करें और जब आप सारी चीज़ें सही कर लें तो फिर हमें दोबारा से बुलाएं, फूड वालों को दोबारा से बुलाएं और दिखाएं कि आपने सारा कुछ सही कर लिया है? ठीक है आप आइए, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। आप अपनी गलती तस्लीम करते हुए सारी चीज़ें सही करने के लिए तैयार? जी कितने दिन में? आप एक हफ्ते का टाइम दें, एक हफ्ता 15 दिन का, बस 15 दिन। नाज़रीन, ये अपने तौर पे अब्दुल्ला साहब कमिटमेंट कर रहे हैं कि ये इस जगह के मालिक हैं और इन तमाम चीज़ों को जो बेज़ाब्तगियाँ इन्होंने की हुई हैं, गलत चीज़ें की हुई हैं, इनको ये सही करेंगे और तकरीबन 15 दिन का टाइम मांग रहे हैं। फूड डिपार्टमेंट से जो सिंध फूड अथॉरिटी है उससे भी ये इसी तरीके से टाइम मांगेंगे और जितना ये टाइम मांग रहे हैं उतना इनको दिया जाएगा ताकि ये सारी चीज़ों की इम्प्रूवमेंट कर लें। इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह इनके पास दोबारा वापस आएंगे और फिर इनकी अच्छी कंडीशन भी दिखाएंगे। हमारा मकसद किसी के कारोबार को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं है। वैसे ही इस तमाम दौर के अंदर जहां पे महंगाई और तमाम चीज़ों का जो है वो ऐसी क्रंच सिचुएशन है कि जहां पे रोज़गार लोगों को होना चाहिए, रोज़गार किसी का बंद करना ना इदारे का ये मकसद है, सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद है, ना हमारा ये मकसद है। लेकिन चीज़ों को इम्प्रूव होना चाहिए। जो सदियों से चलती चीज़ें आ रही हैं, जो सदियों से रविश चलती आ रही है कि गंदे तरीके से लोगों के लिए बनाया जाए और अच्छे तरीके से अपने लिए बनाया जाए, उस चीज़ को अब चेंज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी अपनी पूरे मुल्क में ये जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, ज़्यादातर हम खुद ये कंज्यूम कर रहे होते हैं, कोई बाहर एक्सपोर्ट नहीं की जा रही होती हैं चीज़ें कि हम किसी को जो है ये एक्सपोर्ट कर दें। और बच्चे ख़ास तौर पे इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। जब वो कमज़ोर इम्यूनिटी के साथ डेवलप होंगे तो फिर उसके बाद उनको कौन कौन सी बीमारियां नहीं लगेंगी। ये जो यूज़ करते हैं एसेंस इसको बोलते हैं। अब पहली बात तो ये एक्सपायर था, मैंने जैसे ही उठाया अब ये कंडीशन निकली है, अब हाथ तो नहीं लगा सकते इसको। ये चीज़ें ये कोई फ्यूमिगेशन भी नहीं करा रहे। ये देखिए ऊपर इसकी हालत पड़ी है, ऊपर देखिए आप, ये कंडीशन है सारी। मुआशरे पर निगाह दौड़ाएं तो मिलावट करने वाले चारों तरफ बिखरे नजर आते हैं। बेहिसी इस हद तक बढ़ जाए कि खाने पीने की अशिया में मिलावट हो रही हो तो संजीदा जहन सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या हुकूमत वक्त अपना आईनी और इंतजामिया अपना कानूनी असर रखती भी है या नहीं। जिसकी लाठी उसकी भैंस के मिस्दाक यहाँ जंगल का कानून तो राइज नहीं। इस ज़िम्न में इंतजामी इदारों को मजीद मुतहर्रिक होने की जरूरत है ताकि कोरोना के बाद की दुनिया में आवाम अपनी सेहत बेहतर से बेहतर कर सके। अभी तक फूड अथॉरिटी ने टोटल लाइसेंस 4,384 तक इशू हो चुके हैं। रूरल एरियाज के अंदर एक तो अवेयरनेस की भी कमी होती है, दूसरा ये कि वहाँ पे एक्सेसिबिलिटी और फिर उसके बाद आपके वहाँ पे जो रीजनल ऑफिसेज हैं तो वो किस हद तक जो है पेनिट्रेट कर पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्योंकि हमारी हैदराबाद डिवीज़न खुल गया है, उसके बाद लाड़काना अब लाड़का सखर हमने स्टार्ट किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल लाइसेंस भी हमारे हैदराबाद से आना शुरू हो गए हैं। हमारे रिसोर्सेज है उस पर हम कर रहे हैं लाइसेंस जगह, जिसमें फूड बिजनेस में जितने भी हैं वो दे रहे हैं, फैक्ट्रीज़ को दे रहे हैं, जो हमारी टीम है वो पहुँच रही है और लाइसेंस जितने दे रहे हैं। बहरहाल चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे अवेयरनेस एक तो नहीं है लोगों को, दूसरे ये कि रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पे आप कमर्शियल काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारी हैज़र्ड्स आपको
آلریڈی یہاں پہ مل جاتے ہیں کہ آپ کو اس کیپیسٹی میں کام کرنے کا موقع نہیں ملتا. لیکن جب آپ اپنے پروفٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کی پرواہ نہیں ہوتی آپ کو, تو یہ تمام چیزیں سامنے آتی ہیں. بہرحال یہ تھا آج کا پروگرام, بہتری کی امید کے ساتھ کہ جیسے انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ یہ بہتر کر لیں گے اور چیزیں پھر ہم کو بتائیں گے, تو اسی لحاظ سے ہم یہاں پہ دوبارہ وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ اگر انہوں نے بہتر کر لیا ہے تو ان کی تعریف بھی اسی لحاظ سے کی جائے گی جس طریقے سے ان کی خامیاں اور غلطیاں خرابیاں بتائی گئی تھیں. اسی کے ساتھ ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اجازت, اللہ حافظ.